لوگ تھے انہوں نے فائرنگ کی اور ابھی تک انتظامیہ کا کوئی بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. پھر انتظامیہ ذمہ ہوگی اور اس کا جو سارا ہے وہ راجہ فاروق حیدر کے ذمہ جاتی ہے بات. ظفر آباد میں پی ٹی آئی رہنما عارف مغل کی ریلی پر فائرنگ. عارف مغل سمیت 3 افراد زخمی. زخمیوں میں عارف مغل کا بیٹا بھی شامل. پولیس کا کہنا ہے تینوں زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے. مبینہ طور پر فائرنگ کرنے والا گوہر نامی شخص ہے. واقعے کے بعد شاہراہ سری نگر پر احتجاج. مظاہرین نے گڑھی دوپٹہ کے مقام سے سڑک بند کر دی. پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود. کشمیریوں کا سفیر آپ کے سامنے کھڑا ہے. آپ جب فیصلہ کریں گے ریفرینڈم کے ذریعے ہندوستان نہیں پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں, میری حکومت ایک اور حق دے گی. ریفرینڈم کے ذریعے آپ فیصلہ کریں آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. آزاد رہنا ہے یا پاکستان کا حصہ بننا ہے. ریفرینڈم کرائیں گے, کشمیریوں کو فیصلے کا حق دیں گے. وزیر اعظم عمران خان کا اعلان. آزاد کشمیر میں انتخابی جلسوں سے خطاب میں کہا آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی بات کہاں سے آئی معلوم نہیں. کشمیریوں کی قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی. غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کا بھی وعدہ. نواز شریف اور آصف زرداری پر بھی باؤنسرز. بولے دونوں کی زبان مودی کے خلاف نہیں کھلتی. ایک نے منتیں کر کے مودی کو شادی میں بلایا. زرداری کو پیسے گننے سے فرصت ملتی تو وہ کشمیر پر بات کرتا. دونوں کی حکومت میں امریکہ کھل کر ڈرون حملے کرتا رہا. میرے ہوتے ہوئے کیوں ڈرون حملے نہیں؟ کشمیر میں جیالی حکومت آ رہی ہے. مودی کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. کٹ پتلی کے پسینے چھوٹ رہی ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا انتخابی جلسوں سے خطاب. بولے پیپلز پارٹی کشمیر پر سودا نہیں کرے گی. کسی کو آزاد کشمیر کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. آزاد کشمیر کے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. کسی کی ڈکٹیشن نہیں, عوام کا حکم مانتے ہیں. کشمیریوں نے کہا امن چاہیے تو امن قائم کریں گے. عوام نے چاہا جنگ کرنی ہے تو ہم جنگ کریں گے. اپوزیشن پر بھی تیر برسائے. کہا عمران خان سے استعفیٰ لینے جمع ہوئے, الٹا مجھ سے ہی استعفیٰ مانگنے لگے. آر یا پار کی باتیں کرنے والے پاؤں پکڑنے پر آ گئے. اگر تھپڑ مارنے پہ ہم آئے تو جو ہمارے پیسوں سے 8 کروڑ روپے سے تم نے سرجری کرائی ہے, اتنے تھپڑ پڑیں گے کہ تمہاری شکل سامنے آ جائے گی. یہ سرجری اتر جائے گی تمہاری. وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور پھر پٹری سے اتر گئے. کوٹلی میں جلسے سے خطاب میں مریم نواز کو مخاطب کر کے کہا مریم نواز نے 8 کروڑ روپے سے چہرے کی سرجریاں کرائیں. ہم تھپڑ مارنے پر آئے تو اتنے تھپڑ پڑیں گے کہ ہمارے پیسوں سے کروائی سرجریاں اتر جائیں گی. کلب لاہور کا ایک بڑا پرانا کلب ہے. بڑا شوقین آدمی, موٹا سا, میچ کھیلنے آ گیا. اس کا نام تھا نواز شریف. جب فائنانس منسٹر بنا اپنے امپائر لے کے آتا تھا گراؤنڈ میں. ایک امپائر ڈپٹی کمشنر, دوسرا امپائر کمشنر. وزیر اعظم عمران خان کا انتخابی جلسوں میں ماضی کا ذکر. کہا لاہور جم خانہ آنے والا موٹا نواز شریف وزیر خزانہ بن گیا. وزیر بننے کے بعد اپنے امپائر ساتھ لاتا تھا کہ کہیں ہار نہ جاؤں. نواز شریف نے جیسی سیاست کی ویسے کرکٹ کھیلی. ماضی میں سب ملکوں کے اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے. شکست سے خوفزدہ ٹیم پہلے سے امپائرز کے خلاف شور مچاتی تھی. انٹرنیشنل کرکٹ میں ویسٹ انڈیز جیسی تگڑی ٹیم کے خلاف نیوٹرل امپائر لایا. اپوزیشن کو 1 سال سے انتخابی اصلاحات کی دعوت دے رہا ہوں لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں. عمران خان کی منفی ذہنیت سے خواتین کے خلاف جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. مریم نواز کے خلاف عمران خان اور ان کے وزراء کی زبان درازی اس ذہنیت کی عکاس ہے. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی گولہ باری. کہا ان لوگوں کی زبان درازی معاشرے کو گندگی کا جوہر بنا رہی ہے. خواتین کے لیے تھپڑوں کے الفاظ کا استعمال حکومتی پالیسی اور بیانیہ ہے. ایسا بیانیہ ہوا تو خواتین کے خلاف جرائم بڑھیں گے, نہیں تو اور کیا ہوگا. طلال چودھری کہتے ہیں مریم نواز کے خلاف بولنے والی گھٹیا زبانیں کھینچ لیں گے.
पता चल गया पीटीआई किस कल्चर की पैदावार है। शहद की बोतलें इस्तेमाल करने वाले अपनी तरबियत दुनिया को दिखा रहे हैं। मरियम नवाज ने स्यापा डालना है, बैन डालना है, इलेक्शन लुट गया, इलेक्शन छीन लिया गया। और आप मेरी बात याद रखना, जहां इमरान खान हुकूमत बनाएगा वहां पीपल्स पार्टी के वोट नून लीग से ज्यादा। इमरान खान आज़ाद खारजा पॉलिसी के साथ मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। अल्लाह पर यकीन है इमरान खान की हुकूमत बनेगी, चाहे एक वोट से हो। सरहदों पर उठने वाली हर साजिश पाक फौज नाकाम बना देगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मरियम नवाज की कश्मीर में ज़ुबान गैर जिम्मेदाराना है। कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के वोट नून लीग से ज़्यादा होंगे। चीनी सफ़ीर ने यकीन दिलाया दासू द्यामिर भाषा डैम पाकिस्तान का मुकद्दर बदल देंगे। सिंध वाले कोरोना वैक्सीन लगवाएं वरना मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का पीटीए को खत लिखने का फैसला। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध कहते हैं पीटीए लोगों को मैसेज भेजे कि वैक्सीन लगवाएं वरना सिम बंद हो जाएगी। अगले माह वैक्सीन ना लगाने वाले सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें रोकने का फैसला होगा। भारतीय वायरस का फैलाव रोकने के लिए सूबे में पीर से सख्त पाबंदियों का भी ऐलान। बाजार शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। जुम्मे और इतवार को मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी। तालीमी इदारे भी बंद होंगे। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर पाबंदी। रेस्टोरेंट्स पर सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। सूबे में मज़ारात और दरगाहें भी बंद रखी जाएंगी। ईद की गहमा गहमी में कोरोना वार कर गया। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह 30% से बढ़ गई। कराची में शरह 21.54 रिकॉर्ड। हैदराबाद, पेशावर और नौशहरा में 10। मुजफ्फराबाद में शरह 9% से ज़ायद रिपोर्ट। मुल्क भर में मजमूई शरह 5.65% रही। पंजाब में भी वायरस के फैलाव का खतरा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की शहरियों से SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील। मुहलिक वबा ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। डॉक्टर इकबाल नूरी कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। वफाकी वज़ीर अली जैदी भी कोरोना में मुब्तला, खुद को करंतना कर लिया। बरतानिया का करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बरतानवी वजारत खारजा का कहना है करप्शन का पैसा बरतानिया लाने वालों को हदफ बनाया जाएगा। करप्शन गरीब ममालिक के अवाम को मजीद अफलास में धकेल देती है। ये करप्शन गरीब मुल्कों में जमहूरियत के लिए जहर है। हुकूमत का बरतानवी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों ने करप्शन पर सजाएं दी। भगौड़ा सजा से बचने के लिए लंदन में छुपा हुआ है। शहबाज गिल बोले देर आए दुरुस्त आए। नवाज शरीफ टाइप अनासिर अपने ममालिक से पैसा चोरी करके बरतानिया लेकर गए। ऐसे अफराद ही गुर्बत और पसमानदगी की असल वजह है। ये लोग जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। भारत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़ोन टैप किया गया। इसराइली सॉफ्टवेयर के ज़रिए कई ममालिक के अफराद की जासूसी की गई। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय इक़दाम की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सारे मामले का संजीदगी से जायज़ा लिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा इन मामलात की तफ्तीश और भारत का चेहरा बेनकाब करे। पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत करने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर वफ़द के हमरा चीन पहुँच गए। हम मनसब समेत चीनी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी वज़ीर ख़ारजा के हमरा हैं। वज़ीर ख़ारजा वफूद की सतह पर होने वाले 2 तरफ़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। सामने खड़ा है और वो पकड़ा गया इन फ्रंट ऑफ द डेड बॉडी और अपने वेपन्स के साथ। ये शुबे वाली बात नहीं है। क्रिमिनल माइंड का आदमी है। मर्डर, अटेम्प्टेड मर्डर, दोनों केसेस के साथ हम और पूरे पाकिस्तानी कौम इंसाफ के इंतजार में। नूर मुकद्दम की मौत दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई रुकने की वजह से हुई। मकतूला का सर बेदर्दी से धड़ से अलग कर दिया गया। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्म के निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। तफ्तीश के दौरान मुलजिम का नाम ECL में डालने के लिए दरख्वास्त।
वजारत दाखिला को इरसाल। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मकतूला के अहले खाना से मुलाकात, इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। SSP इन्वेस्टिगेशन कहते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस तयशुदा मंसूबा था। मुलजिम ज़ाहिर जफर ने अपने होश व हवास में नूर मुकद्दम को कत्ल किया। मनफी रवैयों की वजह से खवातीन के साथ हालिया वाक़यात को शह मिली। एक बेटी के बेहमाना कत्ल पर फैलाई गई गुमराहकुन इत्तलात देखकर दुख हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा इंतहाई सफाकी से जवान बच्चे को ज़िंदगी से महरूम किया गया। हुक्मरान तमाम मुतासरा ख़ानदानों को फौरी इंसाफ की फराहमी का फ़र्ज़ पूरा करें। हैदराबाद में ट्रांसफार्मर धमाके के 18 में से 6 जख्मी दम तोड़ गए। जख्मियों में हेस्को के 3 मुलाजमीन भी शामिल। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। 5 हेस्को मुलाजमीन भी नामजद। हेस्को ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। नेपरा का भी नोटिस, हेस्को से मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। MQM पाकिस्तान का जाने नुकसान पर इजहार अफसोस। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा, कहा जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए। 2000 की बात है शायद, उस वक्त वो कहते थे हम आप हमारे साथ मिल जाएं। इंडियन बुकीज़ ने आपसे रब्ता किया? हाँ, चेक करते हैं ना वो, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी या अप्रोच करते हैं तो उन्होंने चांस लिया तो हमने इस चीज़ को इग्नोर किया। भारतीय बुकीज ने इशारों पर नाचने के लिए 50 करोड़ की ऑफर की। 1999 या 2000 में की गई पेशकश को ठुकरा दिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का प्रोग्राम बाउंसर्स में इंकशाफ, कहा बुकीज चाहते थे जिस तरह वो कहें उस तरह करूं। मैंने कहा 50 करोड़ तो क्या 1 अरब भी दो दूं तो ये काम नहीं करना। मैंने कहा मुझे हराम खाने की आदत नहीं। अब्दुल रज़ाक का मुकम्मल इंटरव्यू आज शाम 5 बजे नशर किया जाए। वेस्ट इंडीज़ पहुंचने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बारबाडोस में कोरोना टेस्टिंग मनफी। खिलाड़ियों ने मैदान में प्रैक्टिस भी की। पहला T20 27 जुलाई, टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ 12 अगस्त से होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज शारजा के बजाय श्रीलंका में होगी। ज़राए का कहना है अफगानिस्तान ने श्रीलंकन बोर्ड से सीरीज़ हैम्पटन टोटा में कराने की दरख्वास्त की। सितंबर के पहले हफ्ते में शेड्यूल सीरीज़ के लिए 17 रुकनी अफगान स्क्वाड का ऐलान। हशमतुल्लाह शाहिदी अफगान क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगे। चिन्योट के करीब दरियाए चनाब में कश्ती उलट गई। 4 बच्चों को बचा लिया गया। डूबने वाले 8 अफराद की तलाश जारी। कश्ती में 2 फैमिलीज की खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद सवार थे। ऐनी शाहिद का कहना है पुलिस कश्तियां बंद करवा कर गई, बाद में मल्लाह ने कश्ती चला दी। मानसून का जो नया सिलसिला कराची में मुतवक्के था 25 और 26 जुलाई को हम तवक्को कर रहे थे, लेकिन वो लो प्रेशर एरिया कराची तक उसके असरात पहुंचने के इम्कान बहुत ही कम रह गए। कराची की तरफ बढ़ने वाला बारिशों का सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। 25 और 26 जुलाई को सिर्फ हल्की बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात की पेशगोई। थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़, मीरपुर खास और हैदराबाद में आज रात से बादल बरसने का इम्कान। सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDM में नया अलर्ट जारी कर दिया। ईद के तीसरे दिन भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, गाय, बकरे और दुम्बे कुर्बान किए गए। घरों में दावतें। खवातीन ने आज भी मज़े मज़े के चटपटे पकवान बनाए। सुहाने मौसम का मज़ा उठाने के लिए बारबेक्यू पार्टियां भी जारी। मंचलों का हल्ला गुल्ला, मौसीकी का तड़का भी लगाया। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2128 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसार। मैं हूँ आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ एक ब्रेक के बाद।